I pray the fresh touch, fresh anointing. We especially pray for the young people who are preparing the examination today, Lord. We pray for Jayesh Singh, Anugrah Lucas, and Jacob Joseph. I pray you will give them wisdom, knowledge, understanding, Lord. We want to see the miracle for Anugrah Devare. Lord, do miracle for him, O God. Lord, we thank you. Touch Pastor Joseph Vargas. Thank you for giving them 15 years of their marriage, Lord. We thank you, Lord. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We welcome you to our teaching on the miracles of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर जो हमारी शिक्षा है, इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। We want to just go over 8 things about the miracles of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए उसके बारे में 8 बातें हम उसमें से होकर देखना चाहेंगे। Number 1, the clarification of the miracles. सबसे पहली बात चमत्कारों का स्पष्टीकरण, where we explain what is a miracle. जहां हमने समझाया कि चमत्कार क्या होता है। Number 2 is the calling of the miracles. दूसरी बात चमत्कारों का अर्थ, where we bring different words which is used for the miracles in the Bible. जहां पर हम अलग अलग शब्दों को यूनानी भाषा में देखें जिसमें बाइबल में इस्तेमाल किया है, जिनका चमत्कार का अर्थ समझाने के लिए। For example, wonders, signs, mighty works. उदाहरण के लिए अद्भुत कार्य, चमत्कार, चिन्ह या पराक्रम के कार्य। Then we have covered the counting of the miracles. उसके बाद हमने चमत्कारों की गणना को भी पूरा कर लिया है। We have concluded last week there are many miracles which are not recorded. हमने पिछले सप्ताह इस बात को बताया कि बहुत से चमत्कार ऐसे भी हैं जिनके बारे में बाइबल में कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है। And I said we will study together 33 prominent miracles of Jesus Christ. और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में 33 जो प्रमुख या मुख्य चमत्कार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। And then we did the groupings, the categories or the classifications of the miracle. उसके बाद चमत्कारों का जो दल समूह है या उनका झुंड है या फिर उनकी श्रेणी है वह भी हमने देखा। Because there are prominent 33 miracles. क्योंकि मुख्यतः 33 प्रसिद्ध जो चमत्कार प्रभु And यीशु if you मसीह के हैं, group them, it's easy to understand and follow the miracles of Jesus यदि Christ. आप उसे श्रेणी में विभाजित कर दें तो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को समझना और सीखना बहुत ही सरल हो जाता है। Then we will look to the purposes of the miracle, the causes of the miracle. और उसके बाद जो चमत्कारों का क्या कारण था वह भी हम देखेंगे। The conditions of the miracle. और फिर चमत्कारों की क्या शर्तें थी, The critics of the miracle. और फिर चमत्कारों के कौन कौन आलोचक थे। And I want to add one more point into this one. और इन सभी बातों में एक और बिंदु जो है मैं जोड़ना चाहूंगा, The characteristics of the miracles. और चमत्कारों का गुण। What are the salient features of the miracles of Jesus Christ? अब प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के क्या प्रमुख गुण हैं? So let's begin our journey with the classification of the miracles. आइए हम अपने जो शिक्षाओं की जो यात्रा है वह फिर से हम एक बार इस विभाजन के द्वारा, श्रेणी के द्वारा हम शुरू करें। The groupings or the categories of the miracle. चमत्कारों का कहना चाहिए श्रेणी या उनका अलग अलग दल। Now let's go over. We divided the 33 miracles into 4 groups. हमने 33 चमत्कारों को 4 दलों में विभाजित किया। Number 1, सबसे पहला miracles where we see Jesus is ruling over the nature. आपने देखा चमत्कार जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। Now let me make a statement so you will never go with confusion this morning. मैं एक कथन कहना चाहूंगा ताकि आपको आज की सुबह कोई भी असमंजसता इन बातों को समझने में ना Because हो। there was a question came that
miracles of Jesus Christ has suspended all the natural law. कि कई लोगों ने ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के द्वारा प्रकृति के सारे नियमों को ध्वस्त कर दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया। So let me make it a clear statement मैं एक बहुत ही स्पष्ट कथन कहना चाहूंगा that Jesus Christ ruled over the nature. मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर प्रभुता करता है। He can do many things और वो in बहुत कुछ कर spite सकता of the है circumstances. सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। Number two, दूसरी बात, we saw the second grouping was restoring of the health. दूसरी बात मैंने आपको बताई कि लोगों का स्वास्थ्य उन्होंने ठीक कर दिया। In other words, दूसरे शब्दों में Jesus performed healing in their physical body. प्रभु यीशु मसीह उनके दैहिक शरीर में उन्होंने चमत्कार को किया। Then you could see the removing of demons. Some people will say removing of evil spirit. बुरी दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से बाहर निकालना। And number four, the raising of dead. चौथी बात, मृतकों को जीवित करना। Now, let's make a conclusion before we start reading together the restoration of health. और इससे पहले कि जो दूसरा है स्वास्थ्य को पुनर्बहाल कर देना, हम उसका अध्ययन करें, हम कुछ बातों को पढ़ें। When you study the miracles of Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को पढ़ते हैं, you will see a visible manifestation. Number one, visible manifestation of His divine power. आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो दैवीय सामर्थ्य है उसका एक प्राकृतिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। So the first word is there, dunamis. तो सबसे पहला शब्द आपने देखा डुनामिस आता है। Number two, when we study together, you will see miracles are awe-inspiring events. और आप देख सकते हैं चमत्कार अपने आप में जब आप होते हुए देखते हैं, आपके अंदर एक भय या परमेश्वर के लिए सम्मान भर जाता है। Oh, the wonder. और या फिर आप आश्चर्य से भर जाते हैं। So you see the power. आप देख सकते हैं सामर्थ। Then we see the wonders. फिर हम अद्भुत कार्यों को देखते हैं। Which another Greek word we have seen, teros. और आप देखते हैं दूसरा शब्द जो हमने उसमें देखा है वो है टेरस। Then we see in the miracles and inspiring, instructive revelation of God. फिर आप देखते हैं तीसरी बात, वो एक शिक्षा देने वाले परमेश्वर के प्रकाशन को हमारे सामने रखता है। Believers will, it's coming here now, instructive revelation of God. और परमेश्वर का एक शिक्षा देने वाला या हमें कुछ समझाने वाला प्रकाशन। This I have not given you before. ये मैंने पहले आपको नहीं दिया था। So I want you to write down in your notes. तो मैं चाहूंगा अपने नोट्स में आप ये लिख लें। First one regarding dunamis. पहली बात जो डुनामिस के विषय में था। Number two regarding teros. दूसरी बात जो टेरस के विषय में है। Number three regarding the word Simeon. और तीसरा जो शब्द है आप देख सकते हैं जो सिमियन हमने देखा उससे संबंधित है। Let's go one more time. एक बार फिर से आइए इन तीनों बातों को हम देखें। Because this is very important, so you will understand when we come to the critics of the miracle. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, खास तौर पे तब जब हम आलोचक जो आज परमेश्वर के चमत्कार के आलोचक है जब उसे हम पढ़ेंगे, And the characteristic of the miracle. और चमत्कार के जो गुण हैं जब उसे हम पढ़ेंगे, ये बात बहुत ही When महत्वपूर्ण you है। see the miracle, जब आप चमत्कारों को देखते हैं, you will see God is demonstrating, manifesting His divine power. तो आप देख सकते हैं जब चमत्कार आपके सामने होता है, परमेश्वर अपने दैवीय सामर्थ को, अपने बल को, अपने उस ऊर्जा को प्रकट करता है। And let me tell you one more time. एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, Do not just focus on miracle, but miracle working God. आप केवल चमत्कार पर ही ध्यान न लगाएं अपना, लेकिन उस चमत्कार को करने वाले परमेश्वर के ऊपर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। When you see the miracle, it should bring
a sense of wonder in your heart. दूसरी बात, जब आप चमत्कार को देखते हैं आपके अंदर एक आश्चर्य उत्पन्न होता है। It's not just feeding 5,000 people. ये केवल 5,000 लोगों को भोजन कराना मात्र नहीं है। Wonder to take 5 loaves and 2 fish and feed thousands of people. ये एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि 5 रोटियों को लेकर के इतनी बड़ी भीड़ को भोजन कराना। And you and I can have the revelation of God studying the miracles. और आप देख सकते हैं चमत्कार को देखते हुए आप और मैं परमेश्वर के प्रकाशन को भी पा सकते हैं। Believers, विश्वासियों, this is my desire today, ये मेरा एक दिली इच्छा है that you will get hold of this fact that God can change or God can rule over the nature. इस तथ्य को विश्वासियों आज आपको समझना है कि परमेश्वर प्रकृति के नियम को बदल सकता है, वो उस पर प्रभुता करता है। Last week I gave you 9 miracles where you can see Jesus has ruled over the nature. मैंने आपको 9 ऐसे चमत्कार बताए गत सप्ताह, जिस पे आप इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकृति पर प्रभुता कर रहा है। And I said, well, you have to study in your home मैंने कहा the first miracle Jesus performed at the wedding. और मैंने आपको ये भी कहा कि जो पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह के समारोह में किया, आपको उसका अध्ययन करना है। Now we'll go the restoration of health or physical healing. तो अब हम देखेंगे कि कैसे चंगाई या शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पुनर्बहाल किया। Because I said that 17 prominent miracles under this grouping or under this जैसे classification. मैंने कहा कि 17 मुख्य चमत्कार इस विभाग में या इस खंड में पाए जाते हैं। So we'll write down all the 17 तो miracles. उन 17 चमत्कारों को हम लिखेंगे। Now listen to me. ध्यान से आप सुने। I don't know how many weeks it will take us to complete the miracles of Jesus Christ. मुझे पता नहीं प्रभु यीशु मसीह के इन चमत्कारों को पूरा करने के लिए हमें कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। For sure, it will take minimum 33 weeks because we are dealing with 33 miracles. कम से कम 33 सप्ताह लगेंगे क्योंकि 33 चमत्कारों को हम देख रहे हैं। And you will see, I may even go in detail before even I open the first miracle. यहाँ तक कि हम जब पहले चमत्कार को जब हम शुरू करें, आप देख सकते हैं वहां से ही कितनी व्याख्याओं को हम सीखने और समझने लगेंगे। So number one, under this grouping, सबसे पहली बात इस झुंड के अंदर healing a nobleman's son. और एक कहना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसके बेटे को चंगा करना। Now when you write down, start thinking. आप जब लिखते हैं सोचिए साथ में, Because I'm going to prove later on there are varieties of healing, varieties of circumstances, and varieties of faith. मैंने आपको बताया कि जब हम इसकी व्याख्याओं में जाएंगे, अलग अलग प्रकार के विश्वास, अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि, अलग अलग प्रकार के सोचों को हम देख पाएंगे। Because there are many critics, they believe only Jesus can turn water into wine. बहुत से ऐसे आलोचक हैं, वो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल पानी को दाखरस में ही नहीं बदल सकते, Because they want to endorse the drinking. क्योंकि वो शराब पीने की जो लत है उसे बढ़ावा देना चाहते That's हैं। how they want to concentrate. अब केवल इसी एक बात पर वो जोर देना चाहते But हैं। as you write these 17 miracles, जब आप इन 17 चमत्कारों को यहाँ लिख रहे you हैं, will see the varieties of different types of physical तो healing. आप देख सकते हैं शारीरिक तौर पर अलग अलग प्रकार की चंगाइयां आपके सामने होती दिखाई देती John हैं। chapter 4, 46 to 54. We are not reading now. अभी हम पढ़ेंगे नहीं उस आयत को। Number 2, दूसरी बात, healing of Peter's mother-in-law. और पतरस की सासू माँ को चंगा करना। Peter's mother-in-law. और पतरस की सासू माँ को चंगा करना। Number 3, तीसरी बात, in book of Matthew, that is book of Matthew chapter 8. मैंने कहा कि मत्ती उसका 8 में ये आपको आयत मिलेगा। Extra. If you want to know different types of miracles, just stay in book of Matthew chapter 8 and chapter 9. यदि आप अलग अलग प्रकार के चमत्कारों को सीखना या समझना चाहते हैं, आप केवल मत्ती 8 और 9 ही पढ़ते रहें। Matthew chapter 8 verse 14 and 15 in book of Matthew chapter 8.
और आप देख सकते हैं 8वां अध्याय 14 और 15 आयत मुख्यतः है। Number 3, तीसरी बात, healing of a leper. एक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। Matthew 8, 2 to 4. मत्ती 8, 2 से 4। Let me put a point here. यहाँ मैं एक बिंदु आपको देना चाहूंगा। During the time of Jesus, this leprosy was considered as an incurable disease. और प्रभु यीशु मसीह के समय ये जो बीमारी थी कोढ़ की या श्वेत रोग जो था, इसे अछूत बीमारी और एक ऐसी बीमारी जो चंगा नहीं या ठीक नहीं किया जा सकता, कोई भी इलाज नहीं था। Even in the Old Testament you can see. यहाँ तक कि पुराने नियम में भी आप इस बात को देख पाएंगे। Let's go further. आइए हम आगे बढ़े। Number 4, चौथी बात, healing of a paralytic man who was dropped down from the roof. एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करना जिसके जीवन में अपने आप में वो लकवा ग्रस्त था और उसे छत से नीचे प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा गया था। Mark chapter 2, 1 to मरकुस 12. 2, 1 से 12। Number 5, पांचवी बात, a cripple by the pool. Healing of a cripple. एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करना जो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। Matthew chapter 5, for the Gospel of John chapter 5, यूहन्ना 5, 1 to 16. 1 से लेकर के 16। Number 6, छठवीं बात, a withered man. एक श्वेत रोग वाले व्यक्ति को चंगा करना। He was paralyzed in his hand, उसके हाथ से वह निष्क्रिय था, powerless in his hand. अपने हाथ से वो बलहीन था। Jesus healed that man. प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया। Number 7, सातवीं बात, centurion servant. आप देखिए सूबेदार के गुलाम को चंगा करना। Centurion. C-E-N. No. Centurion servant. और एक सूबेदार के नौकर को चंगा करना। Chapter 8 of book of Matthew, और ये आप देख सकते हैं मत्ती 8 में 5 to 13. 5 से 13। Number 8, 8वीं बात, healing a bleeding woman or hemorrhaging woman. और एक लहू बहने वाली बीमारी से ग्रस्त महिला को चंगा करना। Matthew 9, 20 to 22. और मत्ती 9, 20 से 22. 20 से 22। Then healing 2 blind men. 2 अंधों को चंगा करना। Healing 2 blind men. 2 अंधों को चंगा करना। Matthew 9, 27 to 31. मत्ती 9, 27 से 31। Then we could see a miracle of a mute or a deaf and a blind. एक गूंगे या अंधे या बहरे व्यक्ति के चमत्कार को देखना। Deaf and a dumb man. Sorry, deaf and a dumb man. एक बहरा और गूंगा जो व्यक्ति था उसे चंगा करना। Mark chapter 7, 31 to 37. मरकुस 7, 31 से 37। Sadis. Then number 11, 11वीं बात, a blind man. एक अंधे व्यक्ति को चंगा करना। Mark chapter 8, मरकुस 8, 22 to 26. 22 से 26। Some people have grouped all these blind men, the blind men in Mark, Matthew 9, blind men in Mark chapter 8, and blind man in John 9, they are put under one heading. तो ये अलग अलग जहां पर आप देखते हैं अंधे व्यक्ति की चंगाई की बातों को दिया गया है, उन्होंने सबको एक में ही डाल दिया। But when you study carefully, और जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, all 3 are different healing events. आप देख सकते हैं ये सब के सब अलग अलग चंगाई के घटनाक्रम है। Blind man who was born blind. आप देखिए एक अंधा व्यक्ति जिसका जन्म ही पैदा होते ही वो अंधा था। John 9, 1 to 38. यूहन्ना 9, 1 से 38। Then number 13, we are coming close. Number 13,
और फिर 13वीं बात, a stupid woman. एक कुबड़ी स्त्री। Luke 13:10-17. और लूका 13 10 से लेकर के 17। Verse number 14, point number 14. चौथा बिंदु, A man with dropsy. आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जिसे Luke 14, 1-6, you will see what God, Jesus did to this man. जलंधर का रोग था, हिंदी में आया वर्ड, जलंधर का रोग था, ड्रॉप्सी, who had dropsy. Luke 14, 1-6. लूका 14 1 से लेकर 6 आया। Then 10 lepers in Luke 17. फिर जो 10 कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त थे उनके बारे में आप देख सकते हैं। 17:11-19. लूका 17 11 से 19। Then blind Bartimaeus. फिर आप देख सकते हैं एक अंधा बर्तिमस। Matthew 20:29-34. मत्ती 20 29 से लेकर 34। Number 17. 7वां, Malchus' ear. Healing of Malchus's ear. और मैल्कस के कानों को चंगा करना। I think that was the first surgery I have seen. And it was very successful. और मैं कहूंगा वो सबसे पहला एक प्रकार का चंगाई था जो शल्य चिकित्सा था और वो सफल रहा। No oxygen. उसमें कोई भी ऑक्सीजन या फिर श्वास की जरूरत नहीं पड़ी। No medicine. कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। Nothing. कुछ भी नहीं करना पड़ा। God put the ear back. परमेश्वर ने कान को ज्यों का त्यों कर दिया। Now, just for a few seconds, just think about these 17 miracles. कुछ समय के लिए आप इन 17 चमत्कारों पर थोड़ा गौर फरमाएं। I want you to study and give me the answer next week. मैं चाहूंगा आगामी सप्ताह में आप इन सब का अध्ययन करके मुझे उत्तर दें। It was very important for us to understand Jesus performed variety of miracles. तो आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग प्रकार के चमत्कारों को किया Varieties were there. और वहां पर अलग अलग प्रकार की भिन्नता पाई गई। Variety of age and gender. उनके उम्र के भी अलग अलग प्रकार थे, उनके लिंग के भी अलग अलग प्रकार थे। Young kid, जवान young woman, जवान बच्चे, जवान स्त्री older woman. और बुजुर्ग स्त्री। You can see many were involved in the healing. आप देख सकते हैं इस चंगाई में कई लोग शामिल थे। So now, just think about nature, the ruling of the nature and restoration of health. तो आप देख सकते हैं दो बातें जो हमने भी देखा, प्रकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रभुता करना और बीमारों को या फिर किसी के स्वास्थ्य को ज्यों का त्यों कर देना। So Dr. Thomas is good to have a list of 9 plus 17 miracles. और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर थॉमस की 9 धन 17 इन सारे चमत्कारों की सूची रखना। These 26 miracles, what it has to do with my life? ये जो 26 चमत्कार हैं मेरे जीवन से इनका क्या संबंध है? What is the practical teaching out of this 26 तो miracles? इन 27 चमत्कारों से व्यवहारिक शिक्षा मेरे लिए क्या निकल कर आती Or है? when we look 4 miracles where Jesus delivered people from oppression of demons. या फिर आप देख सकते हैं उन लोगों को जिनको प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा के प्रभाव से आजाद किया, Or 3 people who were raised from dead. या फिर 3 लोग जो मृतकों में से जीवित हो गए। Just start thinking. आप जरा सोचना शुरू करें, Why we have these lists of groupings? ये सूचियां हमारे पास या फिर ये झुंड या ये श्रेणियां हमारे पास क्यों हैं? In some of your home, आप में से कुछ लोगों के घर में you need Jesus to rule over the nature. आपको ये जरूरत है कि आप यीशु को अनुमति दें कि आपके घर में जो प्राकृतिक स्थिति है वो उस पर प्रभुता करे। So food will multiply in your home. तो आप देखिए आपके घर में भोजन कई गुना बढ़ जाएगा। So he can bring joy one into one. He can bring joy in your marriage. तो वो आपके वैवाहिक जीवन में आनंद को दे सकता है, So that you will have money to pay the taxes or the bill. ताकि आपको रकम अदा करने में, बिल्स देने में आपके पास पर्याप्त धन हो।
I know some of you have to pay the bills. मुझे पता आप में से कुछ लोगों को बिल भी देना है We were talking yesterday. We had big bills to pay. और बहुत बड़ी बड़ी रकम हमें अदा करनी, कल हम बात कर रहे थे। And we called Deepak Kirana. और फिर दीपक किराना वाले को हमने I कॉल said, किया। give me time now till Tuesday. मैंने कहा कि मंगलवार तक का हमें समय दो, We'll pay your bills. हम आपके सारे बिल अदा कर देंगे। Because we are dealing with Jesus Christ ruling over the nature. क्योंकि हम अभी देख रहे हैं उन बातों को कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर प्रभुता करे। If God can open the mouth of a fish with a coin, God can open anything for you and I. यदि प्रभु यीशु मसीह एक मछली जिसके मुंह में सिक्का था वह खोल कर दे सकता है, तो वह आपके लिए और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। Listen to me carefully. आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुने। You may have different kinds of sickness. अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकता है आपके ऊपर आए। Just look to one home. आप एक घर के बारे में देखें। You may have a back pain, या हो सकता है आपके पीठ में दर्द हो, or one of your family member will have a knee pain. या आपके परिवार के सदस्य की घुटनों में दर्द हो, One of your family member will have a fever, या फिर किसी को बुखार है आपके घर में। or many kinds of things can come in your home. अलग अलग प्रकार की बातें आपके घर में हो सकता है But आए। remember today, लेकिन आज आप ये याद रखें, we have Jesus Christ who is alive. लेकिन हमें पास एक ऐसा यीशु है जो जीवित है। Now, there are many critics that are saying, बहुत से आलोचक ऐसा बोलते I हैं, was discussing with my wife yesterday about that. और कल अपनी पत्नी के साथ में उनके विषय में चर्चा कर रहा There था। are people they say after the ascension of Jesus Christ and the death of apostle, all the miracles have been seen. लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद जब पूरे प्रेरित चले गए, उसके बाद से चमत्कार बंद हो चुके हैं। And some Christians they think the record we have about the healing is only myths. और कई लोग ये मानते हैं कि जो चमत्कारों की सूची अभी हमने आपको दी, जो बाइबल में दर्ज की गई है, वो केवल कथाएं हैं, यूं ही लिख दी गई है, सत्य नहीं है। Let me answer this one now. मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। I believe Jesus had the rule of the nature. मैं ये मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकृति पर पूरा प्रभुता करते Ruling हैं। of nature. प्रकृति के ऊपर वो प्रभुता करते हैं। He did restore the health. उन्होंने स्वास्थ्य को ज्यों का त्यों भी कर दिया। Those who did not believe in the healing, जो लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करते, you don't believe in Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, Because He is the same yesterday, today, and forever. क्योंकि बीते हुए कल और आज और आने वाले कल में युगानुयुग प्रभु यीशु मसीह एक जैसा है। Yes, in gospel we see the record of all the miracles. हाँ, सुसमाचार में चमत्कारों की पूरी सूची हम देखते हैं, But we see the records of healing right in this room. लेकिन आज इस कमरे में भी हम उस चमत्कार के सूची को देखते हैं। Yes, apostles are gone. हाँ, प्रेरित जा चुके हैं, But Jesus is still alive. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। Don't think that He was only limited to the healing during gospel's time. ये ना सोचे सुसमाचार के समय में ही प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर सकता था, He still performs miracles. वो आज भी चमत्कार करता है। Pastor Wilson is a miracle. मैंने कहा पास्टर विल्सन एक चमत्कार है, Philip Topno is a miracle. भाई फिलिप टोपनो एक चमत्कार है, Pastor Nikhil Gupta is a miracle. पास्टर निखिल गुप्ता एक चमत्कार है। My wife had the bad allergy. I'm talking, no one thought, even doctor said she will never come out of this one. यहाँ तक कि मेरी पत्नी को बहुत ही बुरी एलर्जी हो गई, डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी इससे उबर नहीं पाएंगी। In her, what do you call for that? The coat, nurse's coat, her both pockets were full of tissue paper. आप देखिए जब वो नर्सिस का कोट पहनती थी, उसमें दोनों जेब में उनके कहना चाहिए कि वो दवाइयाँ रहती, टिश्यू पेपर से भरे हुए रहते थे। Because she will sneeze constantly. लगातार वो छींकती, And she was put in the oxygen. और उन्हें ऑक्सीजन में भी रखा गया था, And then they did all the allergy tests. और सारे एलर्जी की जो जांच होते हैं सब उन्होंने किया। She was tested positive for 19 things. 19 प्रकार की Sorry, ऐसी 99 things. 99 प्रकार की ऐसी चीजों के लिए उनको कहा गया कि वो पॉजिटिव है या Doctor said संक्रमित she है। cannot even use the silk saree. वो सिल्क की साड़ी नहीं पहन सकती, ऐसा चिकित्सकों They ने gave a कहा। long list. लंबी सूची उन्होंने दे दी। Who gave the list?
All India Medical Institute. और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने ये सूची दी। But I want to declare to you, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, for many years she didn't have that problem. कई वर्ष बीत चुके हैं, उनके पास कोई भी ऐसी समस्या नहीं What है। it tells me, आपको और मुझे क्या बताते हैं? Jesus does miracle today. प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है। He not only has power over the nature, न केवल उसका प्रकृति के ऊपर एक प्रभुता है, but he has power over my physical body. लेकिन मेरे इस देह के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। Believers, विश्वासियों, it doesn't matter what sickness you have. परवाह नहीं पड़ता किस बीमारी से आप होकर जा रही हैं। Peter's mother-in-law had just a fever. आप देखिए, पतरस की जो सासू है उन्हें केवल बुखार था, The man who was dropped down from the roof, he was just paralyzed. और छत से जिस व्यक्ति को लाया गया वो लकवाग्रस्त था। Some of you are paralyzed in your dreams. आप में से कुछ लोग अपने स्वप्न में लकवाग्रस्त हो चुके All हैं। your dreams have been paralyzed. आपके सपने, कहना चाहिए, अपने आप में लकवाग्रस्त हो चुके हैं। Jesus is still alive. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। I said Jesus is still मैंने alive. कहा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। And those critics, if you don't believe in the healing of Jesus Christ, और वे आलोचक जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सकते, to them, उनके लिए take your Bible अपने बाइबल को लें and take all 4 Gospels out of your Bible. और अपने बाइबल में से 4 सुसमाचारों को आप निकाल कर बाहर कर दें। Tear those pages from the उन Bible. पन्नों को आप निकाल दें अपने बाइबल But I'm से। going to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, you can tear the pages of the Gospel, आप चाहे तो सुसमाचार के पन्नों को निकाल सकते हैं, but you cannot tear the complete Bible. लेकिन आप पूरे बाइबल को नहीं फाड़ If सकते। you start tearing the prophecy, which I'm going to deal with maybe next week, prophecy concerning the miracles of Jesus Christ. यदि आप भविष्यवाणियों को देखें जो मैं आगामी सप्ताह में आपको बताने वाला हूं, जो प्रभु चमत्कार के विषय में किए गए हैं, Chapters in Isaiah deals with the miracle, a prophecy of the miracles performed by Jesus. आप यशायाह के 3 अध्यायों को देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर भविष्यवाणी है। Listen to me. आप मेरी बात सुने, Bible is true. बाइबल सत्य है। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। I don't care how many people come and tell me and whisper in my ear, there is no miracle in 21st century. कितने भी लोग आकर मुझसे कहें कि 21वीं सदी में कोई चमत्कार नहीं होता, मैं उन्हें सुनने वाला नहीं। I can declare to you. मैं आपको कह सकता हूँ, I have 2 platinum stents और मेरे दिल में 2 प्लैटिनम स्टंट लगे हैं, and I'm walking strong. और मैं बड़े अच्छे से चलता हूँ। And God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। How I know He's a miracle working God? मैं कैसे जान लेता हूँ कि वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है? It's not the miracle happened in 2012 ये चमत्कार जो 2012 में हुआ उसके कारण नहीं, or yesterday. लेकिन कल की बात करें, I had a lot of back pain मेरे पीठ में बहुत दर्द था and I was coughing. और मैं खांस भी रहा था। And my wife said, I'm going to pray. I said, you lay hand on me and pray for me. मैंने कहा आप हाथ रखें मुझ पर और प्रार्थना करें। I slept like a baby last night. और एक छोटे बच्चे के समान मैं सो गया। I didn't cough at all. मैं खांसा नहीं, I believe. मैंने विश्वास I किया, believe. मैंने विश्वास किया। Jesus still performs miracle. He is in miracle business. प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है, वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है। Many businesses are going. Many people are going out of business. आप देखिए बहुत से लोगों का धंधा या व्यवसाय बंद होता जा रहा है। Jesus is still performing miracles. I thank God for Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। Some of you have lost your sight. आप में से कुछ लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है, You cannot see too far. आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, You have been blinded. आपको अंधा कर दिया गया है, Or you become nearsighted. या फिर कहना चाहिए आपकी दृष्टि निकट दृष्टि हो गई है। The language of Peter from the Epistle of Peter. और पतरस की पत्री में से यदि मैं कहूँ, Some of you became nearsighted. आप में से कुछ लोगों की निकट दृष्टि हो गई है। God can heal your nearsighted. परमेश्वर आपकी निकट दृष्टि को ठीक कर सकता है, God can heal your blindness. परमेश्वर आपके अंधेपन को ठीक कर सकता है, God can heal your deafness. परमेश्वर आपके बहरेपन को ठीक कर सकता है। Let's go to the third grouping. आइए हम तीसरे झुंड में चलें, The removing of demons. और दुष्ट आत्माओं को निकालना। We have 4 examples. 4 उदाहरण हमारे पास है। Removing of demons in a synagogue. और कहना चाहिए कि उस आराधना स्थल में जाकर के दुष्ट आत्मा को निकालना। Mark chapter 1.
21 to 28. मरकुस 1:21 से 28। Number 2, दूसरी बात, removing of demon in Gadara. और दुष्टात्मा जो गडेरा में थी उसके अंदर से निकालना। Matthew 8, 28 to 34. मत्ती 8:28 से 34। That removing demons from the daughter of Canaanite woman. और जो कनानी स्त्री थी उसकी बेटी के अंदर से दुष्टात्मा को निकालना। Matthew chapter 15, और मत्ती उसका 15, 21 to 28. 28 से 21 से 28। And I want you, in the notes, you underline the word Canaanite and then highlight woman. और जो शब्द वहां पर आप देखते हैं कनानी स्त्री, आप उसे बड़ा करके लिख लें अपने बाइबलों में। Because when we come to that, you will learn why I asked you to underline Canaanite and highlight woman. और वहां पर मैंने क्यों आपको कहा कि आप उसे रेखांकित करें, आपको बाद में मालूम चलेगा। And number 4, चौथी बात, removing of demon or evil spirit from a young boy. और एक जवान बेटे के अंदर से दुष्टात्मा को निकालना। Matthew chapter 17, 14 to 21. मत्ती 17, 14 से 21। Number 4, the group number 4, और चौथा जो दल है, raising of dead. और मृतकों को जीवित करना। Number 1, raising a widow's son. देख सकते हैं, सबसे पहला एक विधवा स्त्री के बेटे को चंगा करना, मतलब जीवित करना। Luke 7, 11 to 17. लूक 17, 11 से 17। Raising Jairus' daughter. और जायरस की बेटी को चंगा करना। Jairus' daughter. Matthew 9, 18 to 26. मत्ती 9, 18 से 26। Raising Lazarus. और लाजर को चंगा करना, मतलब जीवित John करना। 11, 1 through 46. और यूहन्ना 11, 1 से लेकर के 46। Now, I will give a simple assignment. मैं आपको एक बहुत ही सरल गृह कार्य दूंगा। I said, I gave you 3 examples how you can see or how divine power has been demonstrated in raising the dead. आप देखें कैसे अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की इन मृतकों को जीवित करने में दिखाई दी। And there are 3 important things out there. 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। From 3 examples, we learned 3 things. 3 उदाहरण से हमने 3 बातें सीखी। You have to find out and give me the answer next week. आपको ढूंढ कर निकालना है और आगामी सप्ताह में मुझे उत्तर देना है। You can send the message to Pastor Nikhil Gupta आप पास्टर निखिल को ये संदेश दे सकते हैं। in our Facebook, They can comment in the same video. or you can come in the same video. You can come in the same video and answer me what you can learn from these 3 examples. तो इन 3 उदाहरणों से आप क्या सीख सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जब भी चाहें बता सकते हैं। Good that we wrote down 3 examples. Jesus demonstrated His power to raise people from dead or dead people. और ये तो अच्छी है कि 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित करके अपने सामर्थ का प्रकटीकरण किया। But do your homework now. लेकिन आप अपने गृह कार्य को करें, With Bible study, बाइबल का अध्ययन, do your homework. अपने गृह कार्य को करें। And I want to see how many people will respond to this question. और मैं देखूंगा कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। You can learn many truths out of these 3 things. इन 3 बातों से आप बहुत से सत्यों को सीख सकते हैं। Yes, we learned from the 26 miracles, और 26 चमत्कारों से हमने सीखा। and then we have learned few things from the restoring health, आप देख सकते हैं स्वास्थ्य ठीक करने के विषय में भी हमने कुछ चमत्कारों को देखा। removing of demons. दुष्टात्माओं को निकालने के बारे में भी हमने And देखा। here we will find out why 3 examples are recorded in the Bible. आखिर 3 ये कैसे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। Okay, let's go to next, number 5. आइए हम 5वीं बात में चलें। The causes of the miracle. जो 5वां है, आप देख सकते हैं कि चमत्कार के कारण क्या थे। You may say, you went so fast and you gave
33 miracles, that's all we're going to learn. और कई लोग ये बोलेंगे कि बस इतनी ही बातें हम सीखेंगे और 33 चमत्कारों के बारे में आपने बता दिया और सब कुछ समाप्त हो गया। Yes, we wrote down, we have the scriptures. और हमने लिख करके रखा, हमारे पास आयतें हैं। You have to study. आपको अध्ययन करना है। We will cover these miracles. हम इन चमत्कारों को आगे चलकर देखेंगे। It will be a study. जब तक हम अध्ययन ना करें, This will be only a study. ये केवल एक अध्ययन होगा। It will be a step by step. Every miracle I will go step by step. आप देख सकते हैं, हम चरण दर चरण आराम से सारी बातों को हम सीखेंगे, देखेंगे। With the historical facts. ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखकर, cultural facts. और सांस्कृतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर, and biblical facts. और बाइबल आधारित तथ्यों को ध्यान में रखकर, and biblical principles. और बाइबल आधारित सिद्धांतों को ध्यान में You रखकर, will see there are many things you can learn. आप देखेंगे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप इनमें सीख सकते हैं। Culture has something to do in learning the miracles of Jesus आप Christ. देखिए, प्रभु यीशु के चमत्कारों के लिए अच्छे से आपको सीखना है, तो उस संस्कृति को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Unless you know the culture, you will never appreciate the miracles of Jesus. यदि आप संस्कृति को नहीं समझेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की कभी सराहना नहीं कर सकते। For example, उदाहरण तब, why did he make a patty cake by spitting on the dirt and putting on the ice? आखिर क्यों कर उसने जमीन में थूक करके मिट्टी से इस प्रकार की एक लोई बनाई और अंधे के आंख में लगाया? You have to know from the Old Testament why that was done. और पुराने नियम से आपको ये बात पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया। So we have to learn, and you have to do together with me. हमें मिलकर के सीखना होगा और आपको मेरे साथ इस गृह कार्य करना है। The Canaanite woman comes to वो Jesus कनानी स्त्री जो यीशु के पास आती है and she gives her specific need. और वो अपने एक विशेष जो आवश्यकता उसकी जरूरत थी यीशु को बताती है, But Jesus did not answer. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर ही नहीं You दिया। will learn that Jesus did not answer. आखिर यीशु ने क्यों उत्तर नहीं दिया, हम सीखेंगे उन बातों को। And then she quotes something from the Old Testament. फिर आप देखिए, पुराने नियम से कुछ बात को वो लेकर आती है। Even the crumbs fallen from the table, dogs can eat. यहाँ तक कि स्वामी के टेबल से, मेज से गिरे हुए चूर चार को कुत्ते खाते हैं। We will learn from the miracle. हम वहां से भी चमत्कारों से इन बातों को Okay, सीखेंगे। let's come now to the causes of the miracle. आइए चमत्कारों के कारण को हम देखें। Now listen to me. आप ध्यान से सुने। I will give you first just synopsis of the purposes. मैं आपको ये जो कारण है उसके एक संक्षिप्त विवरण में सबसे पहले आपको दूंगा। Then we will go and cover more than 10 purposes. फिर 10 जो उद्देश्य उसके पीछे हैं मैं आपको बताऊंगा। These synopsis of the purposes will change Indian so-called healers. आप देखिए, भारत में जो लोग अपने आप को चंगा करने वाला बताते हैं, उनकी सोच को ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बदल देगा। I want to make it clear. मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, There's only one healer. केवल एक ही चंगा करने वाला His है, name is Jesus. उसका नाम यीशु है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। But God can use people to do the miracle. लेकिन परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है चमत्कार करने के लिए। Example. उदाहरण है, Philip Tokno can fix many things in the plumbing. आप देखिए, जो नल से संबंध, प्लम्बिंग से संबंध जो भी समस्याएं हैं, बहुत सी बातें भाई फिलिप टोकनो खुद ही ठीक कर सकते हैं। But Philip is not a plumber. लेकिन भाई फिलिप प्लम्बर नहीं है, नल बनाने वाले नहीं He's हैं। using his intellect. He's watching a plumber and he's doing some work. आप देखिए, वो देख रहे हैं किस प्रकार से नल वाले कार्य करते हैं, उन्होंने उनसे सीख लिया और वो खुद भी उन कार्यों कर लेते हैं। God has given you and I power. परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दिया है And you have to demonstrate that power through your prayer or laying hands on the people. आपको प्रार्थना के द्वारा लोगों के ऊपर हाथ रख करके दुआ करने के द्वारा उसको क्रियाशील करना है। But you are not a healer. लेकिन आप चंगा करने वाले नहीं हैं। Let me make one more statement. मैं एक और कथन कहना You चाहूंगा, are not a miracle worker, but God is doing
performing miracles through you. आप देखिए, आप चमत्कार करने वाले नहीं, परंतु आपके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करता है। Many people in Itarsi इटारसी में बहुत से लोग ऐसे हैं and India और भारत में are following miracle workers. और वो चमत्कार करने वालों के पीछे भाग रहे हैं। They are going after healers. वो चमत्कार करने वालों के पीछे जा रहे हैं। When you study with me for next 33 weeks, जब आगामी 33 सप्ताह तक आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे, you will make it. This is my goal, that it will be very clear in your heart. Jesus is the miracle working God. आप देखेंगे, आपके मन में ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने हारा है। I have watched Catherine Kuhlman's miracle meetings. और कैथरीन कुलमैन की जो चमत्कारी सभाएं होती थी, मैंने देखा है। I have personally sat on the stage, seen the miracles performed by Benny Hinn. और मैंने इनके द्वारा मंच पर बैठकर मैंने देखा है कि इस प्रकार से चमत्कार होते हैं। And the guy who died. I have seen miracles by R.W. Shamba. और R.W. शाम्बा के द्वारा मैंने देखा है कि किस प्रकार से चमत्कार हुए। Under miracles, I have seen how he will take his jacket and walk on the stage, and people are falling all over. मुझे पता है कैसे अपने जैकेट को वो निकालते, मंच पर चलते और लोग गिरने लगते। I have seen miracles after miracles. चमत्कार के ऊपर चमत्कार मैंने देखे हैं। God used T.L. Osborne, not only in America, but T.L. Osborne came in Lucknow, UP. और टी.एल. ऑसबॉर्न न केवल अमेरिका में लेकिन लखनऊ यूपी में भी वो आए। He has distributed many free books, Healing Power of Christ. आप देख सकते हैं बहुत से मुफ्त की पुस्तक इन्होंने बांटी, जिसका शीर्षक था प्रभु यीशु मसीह की चंगा करने वाले गुण। Many were healed through the ministry of T.L. Osborne. बहुत से लोग टी.एल. ऑसबॉर्न की सेवकाई के द्वारा चंगाई को पाए। Many were healed through the ministry of Oral Roberts. और रॉबर्ट की चमत्कारी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों ने But चंगाई none of पाई। these ministers I have mentioned. लेकिन इनमें से किसी भी सेवकों का नाम मैंने नहीं रखा है। No, I have mentioned. और जिनका नाम मैंने आपको बताया है, They never claimed they are the healers. उन्होंने कभी भी दावा नहीं किया कि हम चमत्कार करने They वाले हैं। always said Jesus is the one who performed उन्होंने miracles. हमेशा ये कहा कि यीशु ही वो है जिसने चमत्कार किया है। God can use his simple, ordinary man. परमेश्वर चाहे तो एक सरल, एक बहुत ही एक आम व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। How I know? मैं कैसे जानता हूँ? A nurse's aide, actually she was less than a nurse's aide, Aya. और आया एक थी, When she got the news that my wife is not feeling good in the hospital, उनको ये खबर मिली कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। she started praying. वो प्रार्थना करना शुरू कर दी। She was not an ordained minister. वो जिसकी नियुक्ति की हुई सेवक नहीं थी, She never went to any college, वो Bible college. किसी बाइबल कॉलेज में कभी नहीं गई, She didn't any crusade and conferences. कभी भी अधिवेशन, कोई भी सभा नहीं She चलाई, was just in a lower class working in a hospital. और बहुत ही निम्न दर्जे की थी और अस्पताल में बहुत ही छोटे पद पर वो सेवा करती थी। God used her as an instrument to bring healing in my wife's life. और परमेश्वर ने उन्हें एक यंत्र के रूप में काम किया, जिनके द्वारा मेरी पत्नी के जीवन में परमेश्वर ने चंगाई भेजी। Listen to me. आप मेरी बात सुने। We had a member in the Itarsi church, इटारसी कलीसिया में एक सदस्य हमारे पास है, late Mr. K.E. Simon. Old people, they were retired from the army. I'm telling you, Mrs. Simon and Mr. Simon. और मिसेस साइमन एंड मिस्टर साइमन। God used them. परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। I remember the days they will go and pray for people, they will get healed. मुझे याद आता है वो दिन कि जब वो लोगों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करते और लोग चंगे हो जाते। Ordinary laymen, lay people from my church. अब हमारी कलीसिया के सामान्य लोग, औसतन लोग, Listen to me. आप ध्यान से सुने, Believers, विश्वासियों, God can give that divine power which will work in you and through you to bring the miracle. परमेश्वर आपको दैवीय सामर्थ देगा जो आपके अंदर, आपके द्वारा चंगाई को लोगों तक पहुंचाएगा। As you join every week for the teaching on healing, जैसे आप प्रति सप्ताह हमारे साथ इस चंगाई के ऊपर जो शिक्षा है उसमें आप जुड़ते हैं, you pray, oh God, आप ऐसा प्रार्थना करें, I'm परमेश्वर available.
मैं उपलब्ध हूँ, I am available मैं उपलब्ध हूँ to be used by you. कि तेरे द्वारा मैं इस्तेमाल किया जाऊँ। If you can use one ayah, यदि परमेश्वर तू एक आया बाई को इस्तेमाल कर you सकता can है use me. तो मुझे भी इस्तेमाल कर सकता You है, can use me. तो मुझे भी इस्तेमाल कर सकता But है। now come to the part because sometimes people pray but they have a wrong motive. लेकिन आइए हम उसके कारणों के पीछे जाएं, ताकि कई बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य गलत होता है। What are the purposes? अब आइए देखें क्या क्या उद्देश्य है। Number one, सबसे पहली बात, the glorification of God. और परमेश्वर की महिमा। If miracle does not bring glory to God, something wrong. यदि चमत्कार से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, कुछ तो गलत है। Every work Jesus did, he brought glory to the Father. हर एक कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो केवल और केवल पिता को महिमा देने के लिए था। Nowadays, people who are performing miracles, आज कई लोग चमत्कार कर रहे हैं, they are doing for their own fame and glory. वे अपने ही महिमा और अपने ही शय के लिए करते हैं। Let me read one passage मैं एक शास्त्र भाग पढ़ना चाहूंगा from John 17. यूहन्ना 17 से। Father, I glorified you on earth, having accomplished the work you gave me. और पिता, जो कार्य तूने मुझे पृथ्वी पर सौंपा, उसे करने के द्वारा मैंने तुझे महिमा पहुंचाई है। उसकी महिमा नहीं, परंतु पिता की महिमा उसने की। और खुद की नहीं, परंतु परमेश्वर पिता की महिमा की। So number one, पहली बात, the main purposes. Number one is glorification of God. सबसे पहली बात परमेश्वर की महिमा। Number two, दूसरी बात, the confirmation of Christ's claim. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो दावा किया उसका प्रमाण। I'm not saying every miracle you will see, but most of the miracle you will see the confirmation of Christ's miracle. मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चमत्कार में आप ये देखेंगे, लेकिन अधिकतर चमत्कार जब आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी दावा किया वो चमत्कार उसका प्रमाण बनते हैं या उसे पूरा करते हैं। There were three main claims of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने 3 मुख्य दावे किए। What are the claims? Number one, पहला दावा किया he is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। Number two, दूसरी बात, he is the Savior of men. वो मनुष्यों को बचाने वाला है। And number three, he is the Messiah. और तीसरी बात, वो मसीहा है। Clear now? बहुत ही सरल है, Very simple. बहुत ही सरल। So when you read a miracle in the gospel, see whether it's proving or confirmation that Jesus Christ is the Son of God. तो आप देखते हैं कि जब आप सुसमाचार में चमत्कारों को देखें, तो क्या वो प्रमाणित करते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, Or या it proves that he is the Messiah. या फिर इस बात को प्रमाणित करता है कि वही मसीहा है। Because you will see in the crowd where Jesus performed miracles, there were many Jews. आप देख सकते हैं जिस भीड़ में जहां प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, बहुतेरे यहूदी थे, Not all Galileans, ना केवल गलीली भाषा बोलने not वाले, only people from other sects और ना केवल दूसरे पंथ के लोग वहां पर or थे, Gentiles, या फिर अन्य जाति थे, but there were many Jews. और बहुत से यहूदी थे। So when those people saw the miracles of Jesus, something started coming into their heart. तो जब वो यीशु को ये करते हुए देखे, उनके मन में कुछ बातें आने लगी He is the Messiah. कि वो मसीहा है। Number three, तीसरी बात, Savior of men. आप देखिए वह जगत का उद्धारक था। Let me explain this point, the last one. मैं अंतिम जो आपको कहा बात मैं उसे समझाना चाहूंगा। Look to the miracle of the paralyzed man who was dropped from the rooftop. आप देखिए जो छत के ऊपर से जब उस व्यक्ति को जो लकवाग्रस्त था नीचे भेजा गया, Yes, he walked out.
हाँ, वो बाहर गया। Yes, he had the miracle. हाँ, उसने चमत्कार देखा। But Jesus said something to that man. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ कहा Your sins are forgiven. कि तुम्हारे गुनाह क्षमा किए गए। Then he said, son, your sins are. उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे गुनाह क्षमा किए गए। There you can see he is the savior of men. आप देख सकते हैं वहां पर कि वह लोगों का उद्धारक है। Number 3. तीसरी बात, Like I said, you will see this. We'll be repeating these things when we study the miracle. जब हम चमत्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे, इन बातों को हम फिर से दोहराएंगे। So number 1, पहली बात, glorification. परमेश्वर को महिमा मिलना। Number 2, दूसरी बात, the confirmation. और मसीह के दावों का पुष्टि करना या उन्हें उनका प्रमाण बनना। Number 3, तीसरी बात, the demonstration या of God's power. परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण। Very important that when you see a miracle, start looking the demonstration of His power. आप याद रखें, जब आप किसी चमत्कार को प्रभु यीशु में देखते हैं, उसके सामर्थ का प्रकटीकरण आप उसमें देखने की कोशिश करें। Let me give one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। Jesus is standing in front of the grave of Lazarus. आप देखिए, लाजर की कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह हैं। How I can see? Can I see the demonstration of God's power there? क्या वहां पर परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण मैं देख सकता हूँ? Yes, I can see. मैं देख सकता हूँ। He just said, Lazarus, come forth. और उसने कहा कि लाजर तू बाहर आ। I see the demonstration of God's power. मैंने वहां पर परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण देखा। He was at the wedding. और आप देखिए, वो उस विवाह में था। He never touched that water. उन्होंने कभी उस पानी को छुआ नहीं। He never prayed over the water. उसने कभी पानी के ऊपर प्रार्थना नहीं But किया। I do believe लेकिन मैं ये विश्वास करता the हूँ, power of Christ was demonstrated when disciples took the water from the pot. आप देखिए, जब उन चेलों ने उस पात्र से पानी निकाला, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ वहां प्रकट हो गई। What is the purpose of the miracle? आप बताइए, उस चमत्कार का अर्थ क्या है? Number 4, चौथी बात, glorification, confirmation, demonstration. Subjugation of Satan's power and evil. आप देखिए, शैतान की जो ताकत है, शैतान का जो बल है, उसका जो सामर्थ है, उसको अपने अधीनता में करना। You will see how demons were delivered. आप देख सकते हैं कैसे दुष्टात्माएं लोगों के अंदर से निकलने लगी। You can see all this. आप देख सकते हैं The spirit of the demons were under control. आप देख सकते दुष्टात्मा की ताकतें मसीह की अधीनता में आ गई। So when you see miracles of Jesus Christ, you see another purpose: subjugation of Satan's power and evil. आप देख सकते हैं बुराई और शैतान की ताकतों को अपनी अधीनता में लाना। Do you remember that the evil spirit went into the herd of pigs? आपको मालूम है किस प्रकार से सूअरों के झुंड में दुष्टात्मा चली गई? Have you thought about that? क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा? Evil spirit leaving this man and going to the pigs. आप देखिए दुष्टात्माएं कैसे इस व्यक्ति के अंदर से निकल करके शूकरों के अंदर चले गए। We'll deal all of it, but just I'm trying to blow the purposes. आप उन वो सारी बातों को देखेंगे, लेकिन अभी उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगा। Listen to me. आप ध्यान से सुनिए। Subjugation of Satan's power and evil, you will see the miracles of Jesus. आप बुराई और शैतान की ताकतों को अधीनता में करने के बारे में देखेंगे। Not in all the miracles, हर एक चमत्कार में नहीं, but some of the miracles you will see this thing. लेकिन कुछ चमत्कारों में आप इसे देखेंगे। Number 5, पांचवी बात, alleviation of needs in the lives of humanity. आप देखिए मानव जाति के बीच में जो आवश्यकताएं पाई जाती है उन्हें पूरा करना, Alleviation, removing. हटाना, उन्हें उनके जीवन से हटाना Alleviation. और उनके सामने से उनके बीच से हटाना। That was the purpose of the miracle Jesus performed. आप देख सकते हैं एक उद्देश्य था कि आखिर प्रभु यीशु ने चमत्कार क्यों किए? So that people will be released. ताकि लोग आजाद किए जाएं, That they will have
deliverance कि उनके of पास their needs, human needs. छुटकारा मिले, एक बड़ी आजादी आए। Yes, they were hungry tonight. अब देखिए, सच में शाम के समय, संध्या के समय वे बीमार थे, भूखे थे। There was a need at that time. अब देखिए, उस समय एक आवश्यकता थी। Jesus performed a miracle which eliminated that human need. आप देखिए, लोगों की वो जो आवश्यकता थी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किया कि उसे उसने पूरा कर दिया। Man was paralyzed. आप देखिए, एक व्यक्ति लकवाग्रस्त था। Healing brought something in his life. In other words, that need, the human need, was taken out from his life. आप देखिए, वो मानवीय आवश्यकता जो उसके जीवन में थी, वो पूरी हो गई। Number 6. छठवां बात, Lastly, अंतिम बात है, education about matter of faith. आप देखिए, विश्वास के विषय में लोगों को शिक्षा देना। Education. शिक्षा देना। You will see through the miracle, people came to know to put trust in God. आप देखिए, चमत्कार के द्वारा लोगों ने परमेश्वर पर ईमान लाया। I have only 30 seconds left, केवल 30 सेकंड शेष रह गए हैं so let me give you the 6 words. और ये 6 शब्द आपको देना चाहेंगे। Glorification, और महिमाकरण, confirmation, और पुष्टि करना, demonstration. और प्रगटीकरण, Then we went to the subjugation. और अधीनता में करना, Then we brought the alleviation. और उसके बाद फिर दूर करना या And number हटाना, 6, we brought education. और उसके साथ छठी बात हमने देखा शिक्षा देना। These are only synopsis of the purposes of the miracle. आप देखिए, जो चमत्कार के उद्देश्य हैं, ये उनका केवल एक संक्षिप्त एक समझ है या एक विवरण है। Next week, आगामी सप्ताह we'll go in detail with the scriptures. और वचन के साथ हम और गहराई में जाएंगे इन बातों And I said, at least I will bring 12 purposes of the miracle. मैंने कहा कम से कम चमत्कारों के विषय में 12 बातें मैं आपको बता पाऊंगा। Some of these things will be under these 6 things, इनमें से कुछ बातें, ये जो 6 बातें मैंने आपको बताई, उसके अंदर आएंगी, but we will learn together. लेकिन हम साथ में मिल करके इन बातों को सीखेंगे। Audience, thank you for being part of this teaching series. और प्रिय श्रोतागणों, आप इस शिक्षा का अंग बने। परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। We'll be back Sunday morning at 9 o'clock. और रविवार की सुबह 9 बजे फिर से हम आपके बीच में आएंगे। We like to see your comments. हम आपके टिप्पणियों को, आपके बातों को सुनना I'm चाहेंगे। telling you how many people are sending note to me personally, and I have been encouraged. और व्यक्तिगत रूप से कितने लोगों ने मुझे इस प्रकार के बातों को, सराहना की बातों को भेजा। मैं प्रोत्साहित हूँ। Pastors need encouragement. और पासवानों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। We are also human beings. हम भी मनुष्य ही हैं। We need your encouragement. आपकी प्रोत्साहन की हमें जरूरत है, So we can come every week and give you what God has put in our heart. कि हम प्रति सप्ताह आपके मध्य आए और बताएं कि परमेश्वर दिल में क्या भरा है। Now I want to make it very clear. मैं इसे बहुत ही सरल करना चाहूंगा। We are not teaching so you can tell we are good teachers. हम इसलिए नहीं सिखा रहे कि आप हमें ऐसा बोले कि हम अच्छे शिक्षक हैं। We know our identity. हम अपने पहचान को जानते हैं, We know our calling. हम अपनी बुलाहट को जानते हैं। The main purpose of teaching that together we become strong. इसे सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मिलकर के मजबूत और बलवंत So होते our जाएं, churches will be strong. ताकि हमारी कलीसियाएं बलवंत होती When जाएं। the church is strong, जब कलीसिया बलवंत होगी, city will be strong. नगर बलवंत होगा। Keep praying for this city. इस नगर के लिए आप प्रार्थना करें, Keep praying for our country. अपने देश के लिए प्रार्थना करें। It's not that good ये कोई स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। how they killed brutally 14-year-old boy, young Christian boy in Orissa. उड़ीसा में कैसे एक 14 वर्ष के जवान को उन्होंने बेदर्दी से मार दिया। Listen to me. आप मेरी बात सुने। Whole America has vandalism and riots because of one man. पूरे अमेरिका में आप देखिए केवल एक व्यक्ति के कारण किस प्रकार से हिंसा भड़क चुका है। We Christians will never go for riot and vandalism. हम मसीही लोग कभी भी हिंसा या तोड़फोड़ करने के लिए नहीं निकलेंगे, But we Christians will pray for the leaders of this nation. लेकिन हम देश के अगुओं के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे God will open the eyes of our leaders. कि परमेश्वर हमारे अगुओं की आंखों को खोलने पाए, They will not come after the Christians. कि वो मसीही लोगों के पीछे ना पड़े।
We need this country. हमें ये इस देश की हमें जरूरत है, Country needs Christians. और इस देश को मसीहियों की जरूरत है। Believer, keep praying for your authority. तो प्रिय विश्वासियों, आप अपने पास जो अधिकार है उसके लिए प्रार्थना करें। Keep praying for our leaders. हमारे अगुवों के लिए आप प्रार्थना करें, Keep praying for those persecuted Christians. और उस प्रताड़ित सताव में पाए जाने मसीही लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता एक अद्भुत दिन के लिए जिसमें तूने नियुक्त किया प्रभु की तेरे वचन की शिक्षा हम तेरे दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के द्वारा सीखी। हम विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने चमत्कारों के विषय में इतनी अद्भुत और भेद भरी बातों को हमारे बीच में रखा, जिसके विषय में अधिकतर लोग पिता परमेश्वर अनभिज्ञ हैं और गलत धारणाओं के कारण पिता परमेश्वर गलत कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते पिता तेरे वचन की एक बाइबल आधारित शिक्षा के लिए जो तूने अपने दास के माध्यम से हम तक और हमारे सुनने वाले श्रोताओं तक पहुंचाया। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारी शिक्षा में आज जुड़े हैं प्रभु, हर एक को तूने आशीषित किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने पाए ये जो वचन की शिक्षा उन्होंने पाई है न केवल अपने प्रायोगिक जीवन में उसे लागू करें परंतु और तक उसे पहुंचाने पाए पिता। यदि कोई फिर से एक बार हम प्रार्थना करते, कोई बीमार, कोई दुखित, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त पाया जाता है, जब इन शिक्षाओं को हम चमत्कार के ऊपर सीख रहे हैं, होने पाए प्रभु यीशु मसीह उन्हें छूकर चंगा करने पाए। तेरा पिता परमेश्वर चंगा करने वाला जो गुण है उनके देह में बहने पाए प्रभु, और हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक प्रकार की पिता तकलीफ से वे लोग चंगे होने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते पिता अपने पासवान के लिए, जब पिता रविवार के लिए और आगामी सप्ताह के लिए जब कई इस सीरीज को, श्रृंखला को वो आगे बढ़ाते हैं पिता, हमारी प्रार्थना है तेरा गाढ़ा अभिषेक उनके साथ रहने पाए, उन्हें और बल दे, और ज्ञान दे, और अंतर ज्ञान से तू भर पिता परमेश्वर, ताकि इस प्रकार की शिक्षाओं को जहां जरूरत है वहां तक हम पहुंचा सके। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के लिए, जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों में तेरे विश्वासी, तेरे मसीही लोगों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते तू उन्हें बल दे कि इस विषम परिस्थिति में वो विश्वास में स्थिर बने रहे पिता, और जो लोग उनके विरुद्ध उठते हैं हम प्रार्थना करते हैं उनके दिलों को तू बदल दे पिता परमेश्वर, उनके मनों को तू बदल दे पिता, वो हिंसा नहीं परंतु प्रेम की भाषा समझने वाले हो जाए, और जो तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु कि अपने शत्रुओं से तुम प्रेम करो। हम प्रार्थना करते पिता अमेरिका के लिए भी, जब हिंसा वहां भड़की हुई है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है वहां भी तेरी शांति कायम रहने पाए पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रकार की हिंसा का मार्ग चुन रहे हैं तो उनकी बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर, उनकी समझ को तो खोल दे पिता परमेश्वर, और वह भी प्रेम भाव के साथ सारी बातों का सुलभ करने वाले हो जाए। फिर से एक बार पूरी शिक्षा के दौरान तेरी उपस्थित रही, हम धन्यवाद करते हैं। रविवार की आराधना को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा जलाल केवल तुझे ही देते हुए प्रार्थना उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते, दया सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। हमारे चर्च के परिवार के लोगों से अनुरोध है, क्योंकि उन्होंने पासवान से ये पूछा गया था, तो इसी सप्ताह में आने वाले 12 या 13 तारीख को, 12-13 को 2 दिन हमारे 2 विश्वासी भाई या कोई भी आपके घर में आएंगे, तो आपने जो भी आपका टाइप और आपका जो ऑफरिंग है जो आपने अलग करके रखा है, वे आपके घर की ओर आएंगे शाम 6 बजे से लेकर तो 8 बजे तक। तो आप तैयार है, आप अपना ऑफरिंग और आपका दशमांश आप उन भाइयों को दे सकते हैं। तो तैयारी के साथ रहिए। 12 और 13 ये 2 दिन, कभी भी 2 दिन में आपके घर में आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।